کشمیر 24 میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں جمیل مصطفیٰ انصاری. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر. لیفٹیننٹ گورنر نے ڈانڈی مارچ کی برسی پر مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا. شمال، جنوب اور وسطی کشمیر میں تصادم آرائیاں، 4 جنگجو ازجان، 1 گرفتار. پولیس. ایشیا کے سب سے بڑے باغ گلی لالہ کو کھولنے کے لیے تیاریاں جاری. اور وادی میں شبانہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے اوپر درج. اب پیش ہیں تفصیل سے خبریں. جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈانڈی مارچ کی برسی پر مہاتما گاندھی اور دیگران کو خراج عقیدت پیش کیا. منوج سنہا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی جی اور تمام ستیہ گرہوں کو میرا عاجزانہ خراج عقیدت، جنہوں نے اس دن شروع ہونے والی تاریخی ڈانڈی مارچ میں حصہ لیا. ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈانڈی مارچ کی 92ویں برسی پر مہاتما گاندھی اور دیگران کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گاندھی جی اور ان تمام عظیم شخصیات کو خراج عقیدت جنہوں نے ناانصافی کی مخالفت کرنے اور ہمارے ملک کے وقار کی حفاظت کے لیے ڈانڈی مارچ کیا. ڈانڈی مارچ مہاتما گاندھی کی قیادت میں نو آبادیاتی ہندوستان میں ایک غیر تشدد سول نافرمانی کی تحریک تھی جو 12 مارچ 1930 کو شروع ہوئی اور 6 اپریل 1930 تک جاری رہی. جنوبی ضلع پلوامہ، وسطی ضلع گاندربل اور شمالی ضلع کپواڑہ کے ہندوارہ میں شبانہ تصادم آرائیوں کے دوران سیکورٹی فورسز نے جیش اور لشکر طیبہ سے وابستہ 4 جنگجوؤں کو ازجان کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ 1 کو زندہ گرفتار کیا ہے. پولیس ترجمان نے کہا کہ یہ تمام جنگجو مخالف آپریشنز خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر عمل میں لائے گئے. آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے کہا کہ پلوامہ کے چواک کلان علاقے میں ازجان جیش محمد کے جنگجو میں سے ایک پاکستانی کمانڈر بھی شامل ہے. انہوں نے محلوق پاکستانی کمانڈر کی شناخت کمال بائی عرف جٹ کے بطور کی. ان کا کہنا تھا کہ محلوق پاکستانی کمانڈر پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں سال 2018 سے سرگرم تھا. درین اثنا پولیس نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ جاری تصادم پر جانے سے تب تک گریز کریں جب تک اس سے پوری طرح سے صاف قرار نہ دیا جائے. بندوق برداروں کے ہاتھوں ایک سرپنچ کی ہلاکت کے ایک دن بعد کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کا دورہ کر کے وہاں سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈی آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی سی آر پی ایف اننت ناگ بھی ان کے ہمراہ تھے. موصوف آئی جی پی نے ضلع مجسٹریٹ کلگام، ایس ایس پی کلگام، ضلع میں تعینات سی آر پی ایف کے سی اوز اور دوسرے اعلیٰ پولیس افسروں کے ساتھ بات چیت کی. مذکورہ ذرائع نے کہا کہ میٹنگ میں پنچایتی راج اداروں اور پروٹیکٹڈ پرسنز کی سیکورٹی کا جائزہ لیا گیا. یاد رہے کلگام کے آؤڈو علاقے میں جمعے کی شب بندوق برداروں نے شبیر احمد میر نامی ایک سرپنچ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. اس سلسلے میں آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے سری نگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں. کل 1:30 شام میں پولیس پلوامہ کو، گاندربل کو، ہندوارہ کو تینوں خبر ملا تھا تو تینوں جگہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا. انفیکٹ ہم لوگ 4 جگہ لانچ کیے تھے جس میں 3 جگہ کامیابی ملی ہے. تو پلوامہ انکاؤنٹر میں 2 ٹیررسٹ مارے گئے. دونوں جیش محمد کا ہے، ایک پاکستان کا خالد بھائی ہے جس کو جٹ بھی بولتے ہیں. 2018 سے شوپین پلوامہ میں ایکٹیو تھا. دوسرا یاقیب مشتاق ہے، جاہد وانی ٹاپ کمانڈر مارا گیا تھا، اس کے بعد اس کو ڈسٹرکٹ کمانڈر بنایا گیا تھا اور کریم آباد کا ہے. اور کریم آباد ایسا ولیج ہے کہ جہاں جیش کا گھر ہوتا تھا، ایپی سینٹر. آج کی ڈیٹ میں کریم آباد میں کوئی ملٹری نہیں بچا ہے اور جیش کا جتنے ٹاپ براس کے تھے ساؤتھ کشمیر کے سارے مارے گئے ہیں. یہ آخر تھا. اور دوسرا جو گاندربل انکاؤنٹر چلتا وہاں پر لشکر طیبہ کا ایک ٹیررسٹ مارا گیا. ایک اور ہو سکتا ہے کوڈر کے اندر بھی ہو، ابھی سرچ چل رہی ہے. ہندوارہ میں بھی ایک لشکر طیبہ کا ٹیررسٹ مارا گیا. اس کے علاوہ پلوامہ میں ہم لوگ ایک روف احمد میر کو
अरेस्ट किए थे लाइव इनकाउंटर में, और उसके पास से पिस्टल मिला है और उसका भी इंट्रोगेशन भी चल रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पंचे सरपंच जो है ये सॉफ्ट टारगेट होता है। इसमें 90% लोग के पास कोई PSO नहीं होता है। जिसको थ्रेट है उसको हम लोग श्रीनगर में कमरा दिए हैं सिक्योर एरिया में, और कुछ को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिला है। कल जो शहीद हुए हैं उनको श्रीनगर में होटल था, बिना पुलिस को बताए चले गए। हम लोग का अफसोस है। आज मैं खुद कुलगांव गया था, वहाँ पर सारे ऑफिसर को बुला के मीटिंग लिए, अपना जो क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए, डू डोंट करना चाहिए, फिर से उसको कर रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, सरपंच हो, पंचायत हो, चाहे जितने भी DDC मेंबर हो, BDC चेयरमैन हो, जितने PRI हो, PP हो, सेफ इन्वायरमेंट में ये लोग अपना काम करें। ये जितने भी टेररिस्ट है, चाहे हजरत बल साइन में हो, चाहे जो आज के इनकाउंटर हो, हर एक इनकाउंटर में एक एक पाकिस्तानी टेररिस्ट होता है, कहीं 2 होता है, कहीं 1 होता है। पाकिस्तान से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन है, आप धार्मिक जगह पर जाकर अटैक करें, धार्मिक स्थानों को कोई नुकसान पहुंचे, लोगों में आक्रोश हो, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करना चाहता है पाकिस्तान। उसके इशारे पर मिलिटेंट ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग पूरा संयम बरत रहे हैं, पूरा प्रिवेंटिव मेजर लेके, श्राइन कोई हो या मस्जिद हो, उसको पूरा कोई लॉस नहीं हो, बचाते हुए, कोलेटर कहीं डैमेज नहीं हो, उसको बचाते हुए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। जम्मू व कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में सयाहों की तफरीह के मरकज शोहर आफाक डल झील के किनारे और दिलकश जबरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ा एशिया की सबसे बड़े टूलिप गार्डन यानी बागी गुलिलाला मुमकिन तौर पर रवा माह के अवाखिर में सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बागबान बाग को सजाने में मसरूफ अमल है। रवा बरस बागी गुलिलाला को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है, जबकि बाग में रोशनी के इंतजाम के लिए जदीद लाइटें नस्ब की गई हैं, जबकि सयाहों के लिए दीगर अकसाम की सहूलियात भी बरामद रखी जा रही हैं। सयाहत को फरोग देने के लिए सयाहों और मुकामी लोगों के लिए खोले जाने वाले बागी गुलिलाला में इन साल मुख्तलिफ अकसाम के लाखों गुलिलाला उगाए गए हैं। ये तो 12 महीने बराबर ये काम चल रहा है, ये टूलिप गार्डन। यहाँ पर पहले हम ये जो अब इस वक्त हम गुड़ाई कर रहे हैं, फिर आएगा जून जुलाई, उसके बाद ये सफाई होता है, फिर उसके बाद निकालना पड़ता है, फिर नवंबर दिसंबर आता है, फिर लगाना पड़ता है, ये केरी नया बनाना पड़ता है, रेत डालना पड़ता है, सब कुछ जो खाद होता है हर कोई चीज़ डालना पड़ता है। और हम ये केरी फिर बनाते हैं, फिर नवंबर में फिर और टूलिप यहाँ पर लगाते हैं। 12 महीने पूरा चलता है, यहाँ पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह रहमान गार्डन तो इंशाल्लाह रहमान खिला हुआ है, इस वक्त भी है। पिछले साल तो कोविड था ही, तो इस साल तो इंशाल्लाह रहमान सब उसको भी फ़र्क आ गया, इंशाल्लाह रास्ता भी ठीक हो गया। इंशाल्लाह रहमान बहुत आएंगे इंशाल्लाह रहमान, इस साल भी गार्डन अच्छा फूल होंगे और लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। श्रीनगर बैरून अक़वामी हवाई अड्डे से अब बराह रास्त बैरून मुल्क जहाज के जरिए सामान रवाना किया जा सकता है, क्योंकि कस्टम हुकाम ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी की है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल को बैरून मुल्क सामान दरामद बरामद करने के लिए निगरान मुकर्रर किया गया है। इस इक़दाम से कश्मीर की बागवानी की पैदावार, दस्तकारी व दीगर अशिया की दरामदात को काफी फरोग मिलने का इम्कान है। हिंदुस्तान और चीन के फौजी अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तातुल को खत्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज्यादा बातचीत की। वजारत दिफा के एक आला अफसर ने आज खबरसां इदारे UNI को बताया कि दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मसले पर जुम्मा को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। कोर कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर हिंदुस्तानी सरहद में वाक़ा चशोल मोल्डू में हुआ। बातचीत जुम्मे की सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और रात के तकरीबन 11 बजे खत्म हुई। RNSA स्कीम के तहत काम करने वाले साबिक उसातिज़ा आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा हुए, जहां उन्होंने अपने मुतालबात के हक में एहतिजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी मुलाजमतें दोबारा बहाल की जाए और अदालत आलिया के हुक्मनामे को लागू किया जाए। हमसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं, पूरे JNK से हमारी जो तादाद है 550 है। हमें गवर्नमेंट ने 2018 में रिक्रूट किया है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, जिस स्कीम के सारे फंड जो है सेंटर से आते हैं। जैसे SSS स्कीम थी, वैसे ही गवर्नमेंट ने हाई स्कूल्स के लिए RMSA स्कीम को लाया और उसके तहत जो है 110 स्कूल्स को अपग्रेड करने के बाद हमें उसमें हर स्कूल के लिए 5 टीचर्स को रिक्रूट किया। बाज़ाब्ता हमने एक एग्जाम पास किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हमारा जो है एक रिक्रूटमेंट बन गया, रिक्रूटमेंट ऑर्डर आ गया हमारे हक में, जो है उसके बाद हमने 28 फरवरी को हमने अपने स्कूल्स को ज्वाइन किया।
गवर्नमेंट ने हमारा जो ऑर्डर है उसमें ऐसे टर्म्स रखे थे कि आपका जो ऑर्डर है ये ईयरली बेसिस के ऊपर होगा। उसके बाद ये हुआ, एक ईयर खत्म होने के बाद हमारा जो कंटिन्यूशन ऑर्डर था ईयर के बजाय उन्होंने 3 महीने का दिया, फिर उसके बाद जो है 1 महीने का दिया, और टिल नाउ उस ऑर्डर पे उसके बाद कोई ऑर्डर हमारे हक में नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि हमारे हक में कंटिन्यूशन ऑर्डर दिया जाए। हम गवर्नमेंट के दरवाजे पर जब बार बार गए, हम जब थक गए, थकने के बाद हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया है कि जैसे इस स्कीम के अंडर बाकी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे हमारे इस कंपोनेंट को भी चलाया जाए। हम शॉर्ट में गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे हक में कोर्ट ऑर्डर जो आया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारी सर्विसेज को वापस से बहाल किया जाए। इधर आशा वर्कर्स यूनियन ने भी प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपया माहाना है, जिस पर गुजारा नहीं हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ महंगाई का सैलाब है। से है, बस हमारी डिमांड इतनी है कि हमारी मांगे पूरी करो। जब हमारा काम का इतना प्रेशर है, वो काम ये काम, कोविड में हमें इतनी ड्यूटी दी, बस हमारी सैलरी है 2000 में क्या बनेगा। जब हम गवर्नमेंट के काम करते हैं, कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, हम भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 2000 में क्या गुजारा हो जाएगा, कुछ भी नहीं। बस जब भी हम सैलरी की बात करते हैं, कहीं पर हमारा ना नाम है, ना सैलरी है, ना कुछ भी। बस आशा वर्करों को कॉल करो, वहाँ पर वायरस हुआ है, आशा वर्करों को आगे ले आ जाए। सिर्फ 2-2 सवेरे जाते हैं, शाम के टाइम वापस घर लौटते हैं। बच्चे छोड़ कर जाते हैं, हम ड्यूटी पे, बच्चे छोड़कर ड्यूटी पे जाते हैं। खुदारा हमारे लिए हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ। आइए नजर डालते हैं मौसमी सूरत हाल पर। वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में इजाफा दर्ज होने के बीच आज मौसम खुश्क मगर अबर आलूद रहा, जिसके बाइस दिन में कदरे सर्दी महसूस की गई। आज दिन भर आफ्ताब और बादलों के दरमियान छुपन छुपाई का खेल जारी रहा। वादी में मौसम में बेहतरी के साथ जहां शहरोगाम में तामीराती काम दोबारा शुरू हुए, वहीं दीही इलाकों में किसानों को भी अपने अपने मेवा बागों और खेत खलियानों में मुख्तलिफ कामों के साथ मसरूफ देखा जा रहा है। इधर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी में माह रवा की 17 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में सयाहती मकाम पहलगाम को छोड़कर बाकी मकामात पर शबाना दर्जा हरारत नुक्ते उंजमा से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही एशियन 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।